Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back to each and every one of you. थोड़ा मैं शिफ्ट हो जाता हूँ पहले, क्योंकि पिछले लेक्चर में समाप्ति उस तरफ हुई थी. ओके, अब 11th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करें. कंप्लीट नहीं हुआ है. पिछली जितने बार हम मुलाकात किए हैं, हमने ट्रेडिशनल, हमने मॉडर्न, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसके सारे रूल्स सब कुछ हमने सीख लिए हैं. तेरा क्या है, मेरा क्या है. आखिरकार मैंने इंट्रोड्यूस किया समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन. This behind me was an accounting equation. What was an accounting equation? A left hand side equal to right hand side. What is there on left and right hand side? At the end of the screen आपको नजर आता है asset equals to liabilities. बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, दुकान में, एसेट और लाइबिलिटी का टोटल सेम होना चाहिए, जो करेक्ट है. मेरा तेरा हमेशा सेम होना चाहिए. तो हर ट्रांजैक्शन जो होता है बिजनेस में, हर लेन देन जो होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद में क्या एसेट लाइबिलिटी सेम है? एक और ट्रांजैक्शन हुआ, क्या वो सेम है? एक और, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की वजह से या तो कुछ प्लस होता है या तो कुछ माइनस, या तो ये वाला प्लस या तो वो वाला माइनस. हाँ, वो आप कर लीजिए और उसके बाद में आप ये कंफर्म कीजिए कि क्या आपका जो वेइंग स्केल है, ओके, दुकान में जब भी कुछ भी खरीदने को जाते हो ना, तो कुछ दुकानदार जो ट्रेडिशनल वेइंग स्केल रखते हैं, यहाँ पे वज़न रखते हैं और यहाँ पे वो आपका आइटम रखते हैं, और फिर देखते हैं 1 kg है कि नहीं, 500 ग्राम है कि नहीं. अगर वो थोड़ा भी अप एंड डाउन है तो गड़बड़ है. अगर वो सेम आता है, तो वो बीच में काटा एकदम मिडल में आता है, तो आप संतुष्ट रहते हो, हाँ बराबर है, अब आप मेरा माल मुझको दे दो. तो हमको यही एक्सप्लेन करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में. क्या एक तरफ का एसेट और दूसरे तरफ का लाइबिलिटी और कैपिटल. लाइबिलिटी मतलब बाहर वाले का पैसा, कैपिटल मतलब मालिक का पैसा. ये मिलकर ही, अगर दुकान में 1 लाख रुपया है तो वो एसेट है, कैश. बट वो कहाँ से आया? मालिक बोलेगा मैंने 80,000 डाले हैं, हाँ तो वो कैपिटल है. बाकी का 20 का क्या? वो मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक लोन, लाइबिलिटी. तो आई रिपीट, एक्सप्लेनेशन. दुकान में एसेट है, कहाँ से आया पैसा? वो या तो लाइबिलिटी होगा, दूसरों का पैसा, या तो कैपिटल, मालिक का पैसा. तो ये हमारा बेसिस है डबल एंट्री
बुक कीपिंग सिस्टम का, और ये हमको आगे जाकर नॉट एक चैप्टर में, हमेशा के लिए आपको सीखना है। आज के लिए हम हमारे इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अबाउ देयर आर 5 क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे रीड नहीं करता हूँ क्योंकि वेरी सिंपल, जब भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को ये ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन ऊपर कहता है गिव दी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस। पहला वाला हमेशा तो जो पूछते नहीं है ना, स्टार्टेड बिजनेस, आज भी आपको वही नज़र आ रहा है। रूपाली मालकिन, मालिक नहीं है मालकिन, कमेंस्ड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस 25,000, मतलब बैंक में उन्होंने पैसे डाले। वेरी इंपॉर्टेंटली देखो, जब बैंक में पैसे डालते हैं तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि बैंक का बैलेंस एसेट है, तो मैंने एसेट में ऐड किया ऊपर। बट पैसे तो रूपाली ने ही डाले हैं ना, रूपाली का पैसा कैपिटल है तो मैंने कैपिटल में ऐड कर लिया। ओके, अगेन जो बबल में दिखता है वो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आई रिपीट, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने क्यू वहाँ पे ऐड किया या मैंने क्यू माइनस किया। ये थे बदलाव कि कैश में प्लस, एसेट में प्लस और लाइबिलिटी में प्लस। अभी हमारा इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट वाला, लेफ्ट में 25,000 है ऊपर, लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, बट कैपिटल में 25,000, तो वो थोड़ा दूर दूर दिखता है, बट लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। द फर्स्ट कॉलम इज लेफ्ट, ये वाला कॉलम है जो मेरे ऊपर है, और ये सेकेंड एंड थर्ड क्या है, राइट हैंड साइड। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये हमको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ, अभी 1 तारीख भूल जाओ, नहीं नहीं नहीं, याद रखना कि 25,000 इज इक्वल्स टू 25,000। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश 5,000, मतलब अरे मशीन खरीदा और पैसे दिए, तो मशीन जो होता है वो एक एसेट होता है, तो मैंने एसेट में ऐड किया। क्यों? देख वो मशीन है। पैसे का क्या, क्योंकि 2 एस्पेक्ट है ना, पैसा गया तो वो भी तो एसेट है, तो उसका डिक्रीज जो है वो भी आपको एसेट में ही दिखाना है। तो एक मशीन का प्लस और दूसरा कैश का माइनस। तो आप बोलोगे सर लाइबिलिटी और कैपिटल राइट हैंड साइड, मैं बोलूँगा कुछ नहीं हो गया, क्योंकि 2 इफेक्ट किसके और कहाँ होते हैं वो तो मैं भी नहीं बोल सकता, बस 2 इफेक्ट होने हैं, वो मैंने दिखा दिया। एक तो मशीन आया, एसेट आया, और एक पैसा गया, एसेट गया। तो घूम फिर के भैया हम तो वही जगह पे आ गए कि 25,000 प्लस माइनस, वो तो 25,000 ही है, लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, कैपिटल वही 25,000, सो देयर इज नो प्लस एंड माइनस, लेफ्ट इक्वल टू राइट। बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट वाला, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ 3,000 ऑन क्रेडिट। व्हाट डज दिस मीन? कि हमने गुड्स खरीदे, माल आया, हमारी दुकान में अगर 2 बक्से हैं, 2 बक्से और खरीदे, ओके, माल खरीदा तो 4 बन जाएंगे ना। अच्छा, तो स्टॉक आया, और किससे खरीदा? स्वरा नाम के किसी इंसान से खरीदा, किसी मैडम से खरीदा है, ओके, उनको हमको पैसे देने पड़ेंगे, उधारी पे लिया ना, ऑन क्रेडिट बोला है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। एक तो गुड्स आए, इसके लिए मैं प्लस कर रहा हूँ, ऊपर आपको दिखा, ये क्यों है? ये स्टॉक का प्लस है। स्वरा का नाम आएगा लाइबिलिटी में, क्यों आएगा? क्योंकि वो हमारी पेएबल है, मे भी 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी हमने वादा किया रहेगा, स्वरा आपका पैसा आप ले लेना। ओके, जब भी किसी इंसान के साथ आप लेन देन करो, उनका नाम आपको नॉर्मली लिखना है। अगर वो लेन देन पूरा हुआ नहीं है, माल लिया पैसा नहीं दिया, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। माल बेचा पैसा नहीं मिला, तो वो एसेट बन जाता है। तो एक स्टॉक का प्लस, एक स्वरा के नाम का प्लस लाइबिलिटी में। तो हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा? वेल, 25 प्लस 3 28, लाइबिलिटी में 3,000 आया, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल 3 प्लस 25,000 बिकम्स 28,000। ऑलवेज डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या है? पेड फॉर सैलरीज, किसी के पगार को आपने दिया है, कैश गया, इसके लिए मैं यहाँ पे एसेट के लिस्ट में माइनस कर रहा हूँ 3,000, क्यों? कैश।
सैलरी खर्चा है, उसका असर किस पे होगा? कैपिटल। मैंने लास्ट टाइम बताया, आज बता रहा हूं, आगे जाके भी बोलूंगा। रिपीट क्यों करूं, मतलब मैं चेंज क्यों करूंगा? कैपिटल पे इनकम एक्सपेंस का फर्क होता है, तो सैलरीज का जो इफेक्ट है वो कैपिटल पे होगा, यहाँ पे माइनस, ये है सैलरीज। तो इसकी वजह से हमारा जो इक्वेशन है वो दिखेगा कैसे? देख, 28 माइनस 3 वो तो 25 है, 3000 ये तो ऊपर वाला जो स्वरा है ना वो, और 25 माइनस 3 22 सेम है। आप देख लो ना, आपको मतलब मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, आप इक्वेशन देख लो। 25 लेफ्ट, 3 प्लस 22 25,000 राइट। बढ़िया है। लास्ट थोड़ा सर्कस कर लेता हूं। रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। कभी कभी बैंक हमको इंटरेस्ट देता है ना, क्योंकि हमने हमारे पैसे बैंक में रखे हैं। पैसे आए, हाँ, तो मैंने कैश में ऐड किया, क्योंकि रिसीव्ड का नॉर्मल मतलब होता है कि पैसे आए, तो ये 200 मैंने प्लस कर लिया। और क्योंकि ये कमाई है, उसका असर कैपिटल पे होगा, तो मैंने कैपिटल में प्लस कर लिया। दो इफेक्ट, कुछ ना कुछ तो दो इफेक्ट हो गए ही, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस वो फिगर आउट करना पड़ता है। ओके, अभी आंसर, क्योंकि ये हमारा लास्ट का आंसर है, शुरुआत से एंड तक जब भी एक ट्रांजैक्शन खत्म हुआ हमने हमेशा चेक किया, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। 25,000 प्लस 200, 25 200, 3,000 is same, and here 22 200, is it the same? Yes, आपके सामने है। So quite simply put, what do you have to remember कि in an equation the left hand side will always be like this, equal to the right hand side। ऐसे नहीं कि हाँ करना ही करना है, नहीं, प्रूव करना है। इसमें प्लस हुआ और उसमें माइनस हुआ, या इसमें प्लस और इसमें प्लस, स्टिल वो हमेशा एट द एंड सेम आता है। ये थोड़े सिंपल ट्रांजैक्शंस थे। जब हम आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे, कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, कुछ नए वर्डिंग्स आएगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और यही इक्वेशन हमको बनाकर हमेशा प्रेजेंट करना है, लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो आज के लिए सर मैडम हम इतना ही रखते हैं। मैं अपने पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन समझ आया है। ज़रूर लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे लेक्चर में हमेशा बैठते हो, अगर हमारे पुराने विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो लेक्चर का लिंक दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें। नए हो यहाँ पर, आपको भूले भटके यहाँ पर आ गए, या आपको किसी ने चैनल के बारे में बता दिया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन भी आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी PDF होते हैं, जो सारा सोल्यूशन एंड क्वेश्चन है, उसका नोट्स आपको PDF द्वारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।